Good morning, dear students. Welcome to the NBF online classes. Let's continue our chapter number 11 in the science, motion and measurement of distances. Okay, in the earlier videos we have studied about the motion. Shall I repeat what is motion? If an object does not change its position with respect to the surrounding, then it is called in the rest position. But if it is changing its position with respect to the surrounding, then it is said to be in the motion. That means अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में रेगुलर चेंज कर रहा है तब तो वो मोशन में है, और अगर उसकी पोजीशन फिक्स्ड है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वो रेस्ट पोजीशन में है. Is it clear? Now here we will read types of motion. There are several types of motion. First one is translatory motion. What is translatory motion? When all parts of a motion moves the same distance in a given time, then the motion of an object is called translatory motion. That means what is important here? All parts of the object should move, not a particular part of an object. All parts of the object should move in a given time interval. Okay, then it is called translatory motion. That means अगर किसी ऑब्जेक्ट के सारे ही पार्ट यानी पूरा ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर रहा है तब तो वो क्या होगा? ट्रांसलेटरी मोशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी बॉक्स को खिसकाते हैं, चेयर को खिसकाते हैं, टेबल को खिसकाते हैं, व्हीकल मूव करते हैं, आप कोई चीज़ थ्रो करते हैं, कोई बलून, कोई स्टोन आपने थ्रो किया, वो सारे मोशन आपके कौन से होंगे? ट्रांसलेटरी मोशन. लेकिन जैसे ये फैन हमने जो ऑन कर रखा है, अगर हम इसके ब्लेड्स का मोशन देखेंगे तो ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है, क्योंकि फैन के सारे पार्ट्स जो हैं वो मूव नहीं कर रहे, कुछ पार्ट इसके स्टेशनरी है, तो वो हमारे ट्रांसलेटरी मोशन के अंडर नहीं आएंगे. इज इट क्लियर? सो when all parts of an object moves some distance in a given time, then the motion of an object is said to be translatory motion. Is it clear? Now what are the examples of this? I have told you that vehicle running on the road, or the motion of earth around the sun, because whole part of the earth is moving around the sun. Is it clear? So this is also the translatory motion. Now come to the types of translatory motion. We can divide it into the two motions, rectilinear motion as well as curvilinear motion. अब हमने इस ट्रांसलेटरी मोशन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, रेक्टिलिनियर मोशन और कर्विलिनियर मोशन. Why the rectilinear motion and curvilinear motion? It is divided in these parts according to the path which is made by object. Okay, हमारा ऑब्जेक्ट जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट हो रहा है या जा रहा है, उस ड्यूरेशन में उसने कौन सा पाथ बनाया है, उसके अकॉर्डिंग हमारे ये दो टाइप की मोशन हमने डिस्क्राइब किया है. इज इट क्लियर? रेक्टिलिनियर मोशन में अगर ऑब्जेक्ट के मूव होने का पाथ स्ट्रेट लाइन है, वेदर इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, एनीथिंग, ओके, अगर वो जो मोशन आपका हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन. लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो अगर कर्व्ड लाइन में इस तरीके से मूव कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? कर्विलिनियर मोशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ वन कार इज मूविंग ऑन द स्ट्रेट रोड, then it is said to be in the rectilinear motion. अगर एक कार स्ट्रेट रोड पर हमारी इस तरीके से मूव कर रही है, ठीक है, तब तो ये क्या हो जाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन. लेकिन इन द हिली एरियाज, अगर आप माउंट आबू या ऐसे किसी एरिया में जा रहे हैं तो वहाँ क्या होगा? कर्व्स होते हैं, ठीक है, वहाँ रोड स्ट्रेट नहीं होती है, देन दैट मोशन इज सेड टू द कर्विलिनियर मोशन. ओके, तो what is rectilinear motion? Motion in a straight line is called rectilinear motion. Okay, and when an object moves along a curved line, here the path is curved line. Okay, if an object moves along a curved line, its motion is called curvilinear motion.
So here are some examples of rectilinear motion and curvilinear motion. The first one is a boy falling. Some examples of rectilinear motion and curvilinear motion are written here. We will read it one by one. Okay. The first one is a ball falling freely from the roof of a building. Okay, from the roof of a building, if a ball falls downward, then due to the gravitation force of earth, it will go vertically downward side. That means in a straight line. If it goes in the straight line, then the motion will come under rectilinear motion. Okay, दैट मीन्स अगर बॉल किसी छत से नीचे गिरती है तो अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स के कारण वो बिल्कुल स्ट्रेट अवे नीचे जाएगी, और स्ट्रेट अवे नीचे जाएगी यानी स्ट्रेट लाइन, वर्टिकली एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी पाथ के उसमें, तो फिर ये जो मोशन होगा इसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन. द सेकेंड एग्जाम्पल इज मोशन ऑफ अ स्ट्राइकर ऑन द कैरम बोर्ड. ओके, यू हैव सीन द कैरम बोर्ड. ओके, हियर दिस इज स्ट्राइकर. अगर आप स्ट्राइकर को ऐसे मारेंगे तो इस तरीके से डिफरेंट एंगल बना करके जाता है, लेकिन ये रैंडम मोशन तो हो रहा है लेकिन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है. यहाँ से इस कॉर्नर पे गया, यहाँ से इस कॉर्नर पे, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है. अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन. दैट मीन्स ये किसका एग्जाम्पल हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन का. नाउ कम टू द थर्ड वन, बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड. अगर ग्राउंड पे आपकी बॉल इस तरीके से रोल होती है तो ये इस तरीके से रोटेट होते हुए जाती है, लेकिन जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं जाएगा ये स्ट्रेट लाइन में ही जाएगी. अगर कोई और इसको किक कर देता है या बैट से किसी चीज़ से मारता है तो इसका डायरेक्शन चेंज होगा, अगर नहीं होगा तो ये उसी फ्लो में एकदम स्ट्रेट अवे जाती जाएगी. ठीक है, तो अगर वो स्ट्रेट लाइन में जाएगी तो अगेन वापस से किसका एग्जाम्पल हो गया है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन का. नाउ द लास्ट वन इज मोशन ऑफ अ बॉय स्लाइडिंग डाउन अ स्लोप. अगर स्लोप पे या स्लाइडर पे कभी आप गए हो तो यहाँ से आप ऐसे चढ़ते हैं, यहाँ से बच्चे बैठते हैं और इस तरीके से वापस उतर जाते हैं. तो ये भी क्या है, अगर स्लाइडर के अलॉन्ग जा रहे हैं तो स्लाइडर खुद भी तो एक स्ट्रेट लाइन में ही है, स्लैंट है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है लेकिन स्लैंट लाइन तो है. यहाँ पे ये नहीं कहा है कि आपको वर्टिकल लाइन में मूव करना है, हॉरिजॉन्टल में मूव करना है, कैसे, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना है. तो ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन. इज इट क्लियर? नाउ कम टू द कर्विलिनियर मोशन. द फर्स्ट वन इज अ बॉल थ्रोन बाय अ बॉय. अगर कोई बॉय ग्राउंड पे है, ठीक है, और अगर वो किसी बॉल को इस तरीके से थ्रो करता है तो इसका जो मोशन होगा वो इस तरीके से होगा हमेशा. ये पहले ऊपर जाएगा, पीक तक जाएगा और फिर वापस से ये नीचे की साइड आने लग जाएगा. ठीक है, वैसे इस मोशन का स्पेशल नेम होता है प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, लेकिन ये बड़ी क्लासेस की बात है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे. अभी सिर्फ इतना देख लीजिए कि ये एक कर्व बना रहा है. अगर ये एक कर्व फॉर्म कर रहा है दैट मीन्स दिस मोशन इज कर्विलिनियर मोशन. Okay, again the second example is same, a javelin or shot put thrown by an athlete. वापस एक एथलीट है, वो जेवलिन या फिर शॉट पुट के लिए थ्रो कर रहा है, तो जो भी थ्रो करेगा उसका हमेशा पाथ तो यही बनेगा. ठीक है, तो उस कंडीशन में वापस से किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कर्विलिनियर मोशन का. नाउ द थर्ड वन, अ मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन द कर्व्ड पाथ. अगर रोड ही कर्व्ड है तो जो मोशन होगा वो कर्व पाथ में होगा. अगर कर्व पाथ में होगा दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, कर्विलिनियर मोशन. इज इट क्लियर? नाउ कम टू द सेकंड टाइप ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन. व्हाट इज दिस? इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ देन इट इज सेड टू बी इन द सर्कुलर मोशन. अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका मोशन कैसा होगा, सर्कुलर मोशन होगा. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन. अर्थ जो है वो सन के अराउंड गोल गोल चक्कर लगाती है यानी सर्कुलर पाथ बनाती है. दैट मीन्स द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज ऑल्सो कॉल्ड सर्कुलर मोशन. In the same way, the movement of moon and the artificial satellite around the earth is called circular motion. Moon और artificial
सैटेलाइट, ये भी तो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, और इनका पाथ भी कैसा होता है, सर्कुलर। तो ये भी हमारे केस के एग्जाम्पल होंगे सर्कुलर मोशन के। नाउ द अनदर एग्जाम्पल इज अ चाइल्ड सिटिंग ऑन अ मैरीगो राउंड। मैरीगो राउंड ये एक तरीके का झूला है, ठीक है, इस पे अगर चाइल्ड बैठा हुआ है तो इस चाइल्ड का जो मोशन होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर। ये मैरीगो राउंड है ना, ये इस तरीके से मूव करता है। सपोज यहाँ पे कोई चाइल्ड बैठा हुआ है तो ये भी इसके अराउंड इस तरीके से मूव करेगा। अब ये जो मैंने पाथ बना रही हूँ, जो ड्रॉ कर रही हूँ मार्कर के थ्रू, ये कैसा है, सर्कुलर, तो इसका मोशन भी कैसा होगा, सर्कुलर मोशन। ओके, माइंडेड द मोशन ऑफ द चाइल्ड इज सर्कुलर मोशन, नॉट द मोशन ऑफ द मैरीगो राउंड। इस बात को ध्यान रखना कि मैरीगो राउंड का मोशन जो है वो सर्कुलर नहीं है, क्योंकि मैरीगो राउंड अपने एक्सिस पे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, लेकिन चाइल्ड जो है उसका जो पाथ है वो सर्कुलर है, ठीक है। तो सिर्फ चाइल्ड का मोशन ही हमारा सर्कुलर मोशन होगा, मैरीगो राउंड का नहीं होगा। मैरीगो राउंड का कैसा होगा ये हम अभी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। सिमिलरली द टिप यानी ये वाला पार्ट, ठीक है, द टिप ऑफ एनी हैंड ऑफ अ वॉच, किसी भी वॉच में 3 हैंड होते हैं मैक्सिमम, मिनिमम 2 होंगे, ठीक है, आवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड। तो इनके जो टिप हैं ये भी किस तरीके से मूव करते हैं, सर्कुलर फॉर्म में, इस तरीके से, ठीक है। अगर आप इनके टिप को देखोगे तो ये भी इसी तरीके का तो मोशन करेंगे, ठीक है। अगर आप आर की इसको देखना चाहोगे तो बहुत स्लो मूव करती है, तो इसको तो आप नोटिस नहीं कर पाओगे। सबसे इजी क्या है, सेकंड वाली हैंड का मूवमेंट आप नोटिस करो, ठीक है। तो इसका टिप जो है ये एक सर्कल बनाएगा, दैट मीन्स इसका मोशन कैसा हो जाएगा, सर्कुलर, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, अ पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑफ अ फैन। ये भी लगभग यही वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। हमने एक फैन की एक ब्लेड पे पॉइंट मार्क कर दिया। अब आप फैन ऑन करोगे तो ब्लेड के साथ ये मार्क इस तरीके से जाएगा, सर्कल में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ये जो पॉइंट है ये सर्कल बना रहा है, तो इस पॉइंट का जो पाथ है वो सर्कल बना रहा है, तो इस पॉइंट का मोशन ही सर्कुलर मोशन है। अगर आप इस फैन का या इसकी ब्लेड्स का बताओगे तो वो सर्कुलर मोशन नहीं होगा। फैन जो है वो अपने एक्सिस पे मूव कर रहा है, तो ये फैन का मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन नहीं होगा। इसकी ब्लेड्स पे अगर आप कोई मार्क करते हो तो वो आपका सर्कुलर मोशन होगा। इज इट क्लियर? नाउ द थर्ड टाइप ऑफ मोशन इज रोटेटरी मोशन। What is rotatory motion? An object is said to be in rotatory motion if it moves about a fixed axis without changing its position. That means its position should be fixed and it should rotate about a fixed axis. That means रोटेटरी मोशन क्या होता है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन पे फिक्स रहे, यानी वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट नहीं होगा, अपनी ही जगह पर। अगर वो किसी एक्सेस के अराउंड स्पिन होता है, घूमता है, रोटेट होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रोटेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल द मूवमेंट ऑफ द फैन इज फिक्स्ड ऑन द सीलिंग बट इट्स ब्लेड्स आर रोटेटिंग अबाउट द fixed axis, so the movement of blade or the motion of the fan comes under rotatory motion. okay, फैन अपनी जगह पे फिक्स है, ठीक है, लेकिन वो घूम रहा है एक एक्सिस के अलोंग। वो जो रॉड है उसकी, वो उसका एक एक्सिस बनाती है और उसके अलोंग वो इस तरीके से उसकी ब्लेड जो है राउंड एंड राउंड मूव करती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन। तो वो मोशन जो होगा वो किस में आएगा, रोटेटरी मोशन के अंडर, ठीक है। देयर आर सम अनदर एग्जांपल्स, द स्पिनिंग ऑफ टॉप से सभी बच्चे खेले होंगे, उसका स्पिन वो अपने ही एक एक्सिस के अलोंग इस तरीके से मूव करता है, तो वो भी हमारा क्या होगा, रोटेटरी मोशन, ठीक है। द व्हील ऑफ स्विंग मशीन, सिलाई मशीन का जो व्हील होता है वो गोल गोल घूमता है ना। वो ऐसा तो नहीं है कि सिलाई मशीन से चल के कहीं और चला जाता हो, उसी पे फिक्स्ड है, एक ही जगह पे है, लेकिन उसका मूवमेंट सर्कुलर इस तरीके से वो मूव कर रहा है, तो वो क्या होगा, उसका मूवमेंट भी क्या हो जाएगा, रोटेटरी मोशन। थर्ड वन, अ जाइंट व्हील। ये झूला आपने सभी ने देखा होगा, इस तरीके से जाइंट व्हील होता है, उसके अंदर
मूवमेंट होता है, तो जो पर्सन है बैठा हुआ, अगर हम उसका मोशन काउंट करेंगे तो उसका मोशन तो कैसा होगा, सर्कुलर। लेकिन अगर आप पूरे एज अ होल जाइंट व्हील की बात करते हो तो वो एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड इस तरीके से मूव करता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रोटेटरी मोशन। सिमिलरली जो विंड मिल होती है उसका मोशन में कैसा हो जाता है, रोटेटरी मोशन। स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, देखो अर्थ का अगर हम सन के अराउंड मोशन देखेंगे तो वो सर्कुलर होगा, क्योंकि पूरा पार्ट जो है अर्थ का वो पूरा का पूरा ही मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो वो तो हमारा क्या होता है, सर्कुलर मोशन है ना। उसके कारण क्या बनता है, ईयर, कंप्लीट ईयर इज फॉर्म ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ठीक है। लेकिन डे और नाइट किससे बनते हैं, द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ। 24 आवर्स में अर्थ जो है अपना एक कंप्लीट स्पिन कंप्लीट कर देती है, ठीक है, तो उसके कारण हमारे डे एंड नाइट बनते हैं। तो उसके लिए अर्थ क्या करती है, अपने एक्सिस पे मूव करती है, जैसे स्पिनिंग टॉप होता है उसी तरीके से अर्थ भी अपने एक्सिस पे स्पिन करती है। वो जो स्पिनिंग वाला मूवमेंट है अर्थ का, वो किसके अंडर आता है, रोटेटरी मोशन का। यहाँ अर्थ का मूवमेंट अगर आपसे कोई पूछेगा तो आपको उससे क्रॉस क्वेश्चन करना है, कौन सा, स्पिनिंग वाला मूवमेंट या फिर अराउंड द सन वाला मूवमेंट। अगर वो अराउंड द सन वाले मूवमेंट की बात करेगा तो वो किस में आएगा, सर्कुलर मोशन में। लेकिन अगर वो स्पिनिंग ऑफ अर्थ के लिए बोले कि अर्थ जो स्पिन कर रही है वो मूवमेंट कौन सा है, तो वो मूवमेंट आपका कौन सा हो जाएगा, रोटेटरी मोशन वाला, ठीक है। द लास्ट वन इज टर्निंग ऑफ मैरीगो-राउंड, बाइसाइकिल्स व्हील और अ पॉटर्स व्हील, ठीक है। मैरीगो-राउंड जो मैंने अभी बताया था, मैरीगो-राउंड भी एक एक्सिस के अलोंग इस तरीके से गोल गोल घूमता है। उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चेयर्स होती हैं, चेयर्स कह दो या फिर वो अलग अलग एनिमल्स की फॉर्म में बच्चों के लिए होती है, किसी कोई रैबिट बना हुआ कोई क्या, ठीक है। उस पर जब बच्चे बैठते हैं तो जो चाइल्ड का मोशन होता है वो तो क्या होगा, सिर्फ अगर हम चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड का मोशन तो कैसा होगा, सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर हम कंप्लीट मैरीगो राउंड, उस पूरे झूले की बात करते हैं मैरीगो राउंड की, तो वो अपने एक्सिस पे रोटेट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, रोटेटरी मोशन, ठीक है। सिमिलरली बाइसाइकिल्स व्हीकल, बाइसाइकिल का व्हीकल भी क्या होता है, जुड़ा हुआ तो बाइसाइकिल से ही होता है, ठीक है। वो ऐसे ऐसे रोटेट करता है और उस रोटेशन के कारण बाइसाइकिल आगे बढ़ती है, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो कि बाइसाइकिल से दूर चला जाता है, जुड़ा हुआ तो बाइसाइकिल में ही है, ठीक है। तो वो जो उसका मोमेंट है बाइसाइकिल के व्हील का, वो भी क्या होता है, रोटेटरी मोशन। सिमिलरली पॉटर्स व्हील, पॉटर्स व्हील कुम्हार का जो चाक होता है जिससे वो घड़े बनाता है, वो भी ऐसे गोल 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 घूमता रहता है। उसकी एक्सिस पे ही वो मिट्टी रख करके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, मटका या कुछ भी जो भी उन्हें बनाना होता है वो बनाते हैं, ठीक है। तो वो जो चाक है वो भी किस तरीके से घूमता है, एक व्हील की तरीके से, ठीक है। वो जो स्पिनिंग होती है उसकी, उसको भी हम क्या बोलेंगे, रोटेटरी मोशन। इज इट क्लियर? So the next type of motion is oscillatory motion. What is oscillatory motion? When an object moves to and fro about its mean position, then its motion is called oscillatory motion. That means oscillatory motion की condition क्या है, mean position के about to and fro movement होना चाहिए। एक mean position है उसके about टू एंड फ्रो, आगे और पीछे इस तरीके का मोशन होना चाहिए, तब उसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ अ स्विंग, झूला झूलते हैं, झूला झूले का कोई पर्सन, तो झूला किस तरीके से जाएगा, यहाँ से यहाँ ऐसा, और वापस इसी पोजीशन में आएगा, फिर वापस जाएगा। स्टेशनरी पोजीशन में आपका जो झूला होगा, जो स्विंग होगा वो यहाँ होगा, तो इसको तो हम क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन, ठीक है। ये तो आपकी क्या हो जाएगी, मीन पोजीशन। और इसके अबाउट दिस मीन पोजीशन ये टू एंड फ्रो इस तरीके का मोशन करेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस मोशन को ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। ये मिड वाली आपकी मीन पोजीशन है और इससे आपने इधर शिफ्ट किया, फिर वापस मीन पोजीशन पे आया, फिर शिफ्ट किया, फिर मीन पोजीशन पे आया, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑसिलेटरी मोशन। तो द मोशन ऑफ द स्विंग इज कॉल्ड oscillatory motion. In the similar way, the motion of the pendulum of a clock also called oscillatory motion. उसका मोशन भी इसी तरीके से होता है, मीन पोजीशन होती है, एक्सट्रीम पोजीशंस होती है, ये हमने पहले वाले वीडियोस में ऑलरेडी
डिस्कस कर ली है, तो उसका जो मोशन होता है पेंडुलम का वो भी किसके अंडर आता है, ऑसिलेटरी मोशन में। ध्यान रखना ऑसिलेटरी मोशन के अंदर आपका कंप्लीट ऑब्जेक्ट जो है वो टू एंड फ्रो मोशन के अंदर इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। नाउ कम टू द वाइब्रेटरी मोशन, द मोशन इन विच अ पार्ट or parts of an object always remain fixed and do not move while the rest of the object moves to and fro in a definite pattern is called vibratory motion. That means इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसका कुछ पार्ट तो कैसा है, स्टेशनरी, फिक्स्ड, और बाकी का जो पार्ट है ऑब्जेक्ट का वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है मीन पोजीशन के अबाउट, यानी मीन पोजीशन के अबाउट इसमें भी टू एंड फ्रो मोशन है एंड ऑसिलेटरी में भी था। लेकिन वाइब्रेशन में क्या होगा, वाइब्रेटरी मोशन के अंदर कुछ पार्ट जो है वो फिक्स रहेगा ऑब्जेक्ट का और कुछ पार्ट जो है वो टू एंड फ्रो मोशन के अंदर इंक्लूड होगा, तो इसको हम कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन। आपका फोन वाइब्रेशन मोड में होता है तो वाइब्रेट होता है ना, पूरा फ़ोन तो मूव नहीं करता, कुछ पार्ट उसका स्टेशनरी होता है, कुछ उसका वाइब्रेट होता है, ठीक है। In the same way, a stretched string when plucked. For example, अगर आपने एक स्ट्रिंग ली है, उसको यहाँ और यहाँ से बांध दिया, दो एंड से आपने उसको बांध दिया अच्छा टाइट करके, अब आप उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करोगे तो वो मीन पोजीशन के अराउंड इस तरीके से वाइब्रेट करेगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, वाइब्रेटरी मोशन। रेस्ट पोजीशन में तो वो इस तरीके से स्ट्रेच्ड है, आप उसको थोड़ा सा उसकी पोजीशन से ऊपर या नीचे करके स्ट्रेच करके छोड़ दीजिए, तब वो इस तरीके से मोशन करेगी, तो ये मोशन जो है वो आपका वाइब्रेटरी मोशन होगा। ये वाइब्रेटरी मोशन क्यों है, बीच वाले पार्ट से तो इसका मैक्सिमम मूवमेंट होगा, ठीक है, लेकिन जो कॉर्नर वाले पार्ट्स हैं वो इसके कैसे हैं, फिक्स, तो हो गई ना चीज़, कुछ पार्ट जो है वो तो फिक्स्ड है और अनदर पार्ट जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो आपका मोशन में है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वाइब्रेटरी मोशन। इसके कुछ और एग्जांपल्स भी हैं वाइब्रेटरी मोशन के। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में जितने भी वायर वाले होते हैं, सितार, गिटार, इनके अंदर जो वायर्स हैं उनको हम इसी तरीके से वाइब्रेट करते हैं। पर्टिकुलर नोट्स पे अगर आप उनको वाइब्रेट करोगे तो एक पर्टिकुलर साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी, तो वो भी हमारे किसके अंदर आते हैं, वाइब्रेटरी मोशन के अंदर। तबला, ढोलक, ये सब जो हैं उनकी जो मेम्ब्रेन है उस पर जब हम इस तरीके से मारते हैं तब उसकी मेम्ब्रेन भी टू एंड फ्रो मोशन करती है। आप इसको कर सकते हैं अगर आप उस मेम्ब्रेन के ऊपर पेपर के कुछ पीसेस करके डाल देंगे और फिर आप उसको अगर बजाएंगे तो आप देखेंगे वो पेपर के पीसेस जो हैं वो भी वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वाइब्रेशन ढोलक और तबला उनकी मेम्ब्रेन में भी होता है, ठीक है, वो भी किसके अंदर आते हैं, वाइब्रेटरी मोशन के अंदर। इज इट क्लियर? नाउ we can categorize the motion into periodic motion and non-periodic motion. Let's see what is periodic motion. A motion that repeats itself after regular intervals of time is called periodic motion. That means ऐसा मोशन जो कि रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करे, उस मोशन को हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम का टाइम पीरियड फिक्स होता है, इट हैज़ फिक्स्ड टाइम पीरियड विच डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ओके, सो द स्विंगिंग ऑफ द पेंडुलम इज अ पीरियोडिक मोशन because when it completes its one cycle in t second, then the other cycle will also be completed in same t second. This time period will not change. अगर ये टाइम पीरियड चेंज नहीं हो रहा है दैट मीन्स ये जो मोशन है ये पीरियोडिक है, दैट मीन्स ये जो मोशन है ये इस t टाइम पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। ओके, सो द स्विंगिंग ऑफ द पेंडुलम इज पीरियोडिक मोशन। अगेन, movement of the earth around the sun. Movement of the earth around the sun takes 365 days and 1/4 day. Okay, that means 365 and 1/4 days के बाद में हमारी अर्थ जो है वो सन का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेती है, उसके बाद जब नेक्स्ट रिवॉल्यूशन का टर्न आता है वापस वो सेम टाइम लेती है, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड है ये चेंज नहीं हो रहा है, ये रेगुलर यही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस मोमेंट को हम वापस से क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। इन द सेम वे स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑल्सो टेक्स 24 आवर्स। ओके, सो
दैट इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन। तो जो भी मोशन अपने आप को रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करता जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मीन्स पीरियड शुड बी फिक्स, टाइम पीरियड शुड बी फिक्स। टाइम पीरियड मीन्स आपका जो कंप्लीट साइकिल है उसको कंप्लीट होने में जितना टाइम लग रहा है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड उसका क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। ओके, नाउ कम टू द नॉन पीरियोडिक मोशन। इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ पीरियोडिक मोशन। दैट मीन्स इसके अंदर कोई भी रिपीटेशन रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद नहीं होगा। दो कंडीशंस है, या तो रिपीटेशन ही नहीं होगा या फिर रिपीटेशन होगा तो रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद नहीं होगा। सो द नॉन पीरियोडिक मोशन इज द मोशन दैट डज नॉट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर regular interval of time, then it is called non-periodic motion. The example of non-periodic motion are motion of vehicle. रोड पे जितने भी व्हीकल्स हमारे चल रहे हैं इनमें से कुछ का मोशन तो रैंडम है और इनमें कोई पीरियोडिसिटी नहीं है क्योंकि अपने आप को रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, मोशन ऑफ बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज का मोशन में क्या होता है, रैंडम होता है, डायरेक्शन भी रैंडम होता है और वो कब कहाँ कितनी देर में पहुँच रही है नोबडी नोज। ठीक है, मोशन ऑफ विंड, ये भी हमारे लिए डिटरमाइन करना मुश्किल है, तो ये भी हमारी किस कैटेगरी में आएगा, नॉन पीरियोडिक मोशन में। ठीक है, नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज मल्टीपल मोशन। मल्टीपल मोशन मीन्स different motion at the same time. That means we will take the same example in the several type of motions. Okay, how? We are taking here 3 examples. First one is a boy riding a bicycle. Okay, in this the motion of a boy and the motion of the bicycle, we will talk about these 2 things. Okay, first of all, which type of path is made by the bicycle, whether it is the straight line or the curved path line, it will be translatory motion, this is for sure. So the motion of the boy will be translatory. If the path is straight line, then it will be rectilinear. If the path is the curved path, then it will be curvilinear. And if we talk about the wheels of the bicycle, the wheels of the bicycle will rotate on its axis, so that motion will be called rotatory motion. So we can take this example in rotatory motion, rectilinear motion or the curvilinear motion. Is it clear? Now come to the second example, motion of earth. If we talk about the spinning of earth on its axis, then it is said rotatory motion. And if we talk about the revolution around the sun, then this will be circular motion. And both of the motion are periodic because in both cases earth repeats its motion after regular time interval. So in the both case we will say these motions are periodic. Okay, that means इस एग्जाम्पल को हम पीरियोडिक मोशन के लिए भी यूज करेंगे, रोटेटरी मोशन के लिए भी यूज करेंगे और सर्कुलर मोशन के लिए भी यूज करेंगे। नाउ इन द केस ऑफ मैरीगो राउंड, अगेन अगर हम पूरे मैरीगो राउंड के लिए बोलते हैं, इफ वी टॉक इट एज अ होल मैरीगो राउंड, देन इट विल बी एग्जाम्पल ऑफ रोटेटरी मोशन. But if we talk about the outer part on which children sit, then this part exhibits circular motion. How? I have explained it earlier. Okay, that means एक ही एग्जाम्पल दो या दो से ज़्यादा तरीके के मोशन को शो करता है. ठीक है, कैसे शो करता है वो हमने यहाँ पे देखा. आई होप आपको इस चैप्टर का कंसेप्ट समझ में आया होगा. प्लीज़ रीड योर बुक केयरफुली एंड
see the video carefully once more to understand the concept. Thank you.